Today we will start the new topic number 4, that is chemical thermodynamics. So first we start with the example. We see the ice is converted into water, means solid water is converted into liquid water. Similarly, the liquid water is converted into vapor, or it is converted into gaseous state. Then there is a formation of carbon dioxide by reaction of carbon with oxygen. So in all this process there is the energy change occurs. Similarly, in dry cell there is a conversion of chemical energy into electrical energy, and during the electroplating there is the conversion of electrical energy into chemical energy. So in all these example we see the energy change occurs. So in thermodynamics it is all related with energy change. In thermodynamics all the things are related to energy change. तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम आइस का कन्वर्जन लिक्विड वाटर में करते हैं तब भी एनर्जी चेंज होती है. जब लिक्विड वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तब भी एनर्जी चेंज होती है. या जब कार्बन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, हियर ऑल्सो देयर इज एनर्जी चेंज. Similarly, in case of dry cell, here the chemical energy is converted into electrical energy. Dry cell में हम देखते हैं कि chemicals होते हैं, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो electrical energy में convert होते हैं. And in electroplating, the electrical energy is converted into chemical energy. So in all these example, there is energy change. Here, one form of energy is converted into another form of energy. Means one form of energy is converted into other form of energy. There are many forms of energy, such as there is mechanical energy, means the potential energy and kinetic energy. Then there is electrical energy. Then there is solar energy, then wind energy, then chemical energy. So these are the different forms of energy. These are the different forms of energy or different types of energy, and all these energies are converted from one form into another form. So in thermodynamics we study all about the energy change. So first we start with the definition of thermodynamics. So the thermodynamic means it is a branch of chemistry, or it is a branch of physical chemistry. Here there is Now we start with the definition of thermodynamic. So it is a branch of chemistry. It concerns with the energy change. It is a branch of chemistry. It concerns with the energy change in any physical or chemical process. Means it is a branch of chemistry. It concerns with energy change in any physical or chemical change or chemical transformation. Means in this branch it give information about the any energy change in any physical or chemical change or chemical process. While we study the thermodynamics, we should know some important terms. The first is what is mean by system, and second important term is what is mean by
surrounding. So we see the definition of system and surrounding. System, it is the part of universe. It is a part of universe under the thermodynamic investigation. It is a part of universe under the thermodynamic investigation. Means it is a part of universe which is under thermodynamic study. Suppose if you take a beaker, and in that beaker if you take the hot water, and here we study about this part, then this part is called the system. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बीकर में हॉट वाटर ले रहे हैं और इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो दिस बीकर इज कॉल्ड सिस्टम. मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन. मीन्स ये ऐसा पार्ट होता है यूनिवर्स का जो हम थर्मोडायनामिक स्टडी करने के लिए सिलेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड सिस्टम. So it is a part of universe under the thermodynamic investigation. The second important term is surrounding. Surrounding means the part other than universe or the part which is other than system or the remaining part of universe. All other part of universe surrounding means all other part of universe outside the system. outside the system मतलब सिस्टम को छोड़कर जितना भी रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का उसे बोलेंगे हम सराउंडिंग. सो ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. You all write down. The first is what is meant by thermodynamics. So it is concerned with energy change in any physical and chemical change or transformation. Second important definition is system. It is a part of universe under the thermodynamic investigation. And surrounding the all other part of universe outside the system. यानी सिस्टम को छोड़कर जो भी रिमेनिंग पार्ट यूनिवर्स का बचा हुआ है उस पार्ट को हम कहेंगे सराउंडिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है सिस्टम की. इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन. मतलब ये सिस्टम का, ये यूनिवर्स का ऐसा पार्ट होता है जो हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए चूज करते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम. देर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. नंबर वन इज ओपन सिस्टम. फर्स्ट टाइप इज ओपन सिस्टम. देन द सेकेंड इज क्लोज्ड सिस्टम. सेकेंड टाइप इज क्लोज्ड सिस्टम. एंड थर्ड वन इज isolated system. So there are three types of system. We will see one by one. The first is open system. It is a system which can exchange both energy and matter with the surrounding. मीन्स ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों भी चेंज होते हैं. बोथ आर एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, मतलब दोनों भी चेंज होते हैं. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, हियर कंटेनर
शुड बी ओपन। जब भी हम ओपन सिस्टम स्टडी करेंगे, यहाँ पर जो कंटेनर होगा, ये जो सिस्टम होगा, इट शुड बी ओपन। ओपन रहना मस्ट है। सपोज इफ यू टेक द हॉट कॉफी इन अ कप। सपोज हम हॉट कॉफी एक कप में रख रहे हैं। आफ्टर सम टाइम हियर द एनर्जी एंड मैटर बोथ आर एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। तो हम देखते हैं कि इसमें का मैटर भी कुछ देर के बाद कम होता है और एनर्जी यानी ये जो हॉट कॉफ़ी है वो जो है कोल्ड हो जाती है। इसका मतलब उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। यानी यहाँ पर ये जो है कंटेनर ओपन है, इसलिए यहाँ पर मैटर भी एक्सचेंज होता है सराउंडिंग में और एनर्जी दोनों भी यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। तो यहाँ पर सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंटेनर शुड बी ओपन और डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, दैट इज हॉट कॉफी इन अ cup. Then other examples are all animals are also the example of open system. Then all birds, then human beings, then planets, all are the example of open system. तो ये हुआ first type of system. The second one is क्लोज सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम देखेंगे, हियर कंटेनर शुड बी क्लोज। यहां पर हम जो भी कंटेनर लेंगे ये यहां पर क्लोज होना मस्ट है, क्लोज रहना जरूरी है। तो अब यही ऊपर के एग्जांपल में हमने देखा कि हॉट जो कॉफी है उसे हमें यहां पर क्लोज कंटेनर में रखना है, यानी इसके ऊपर या इसको क्लोज करना है। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ पर मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होता। तो इस केस में या क्लोज सिस्टम में सिर्फ जो हॉट कॉफी है कुछ देर के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल्ड, और इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है। यहाँ पर मैटर एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कंटेनर जो है ये क्लोज है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन है अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विथ सराउंडिंग। इसका मतलब है इस सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता है विथ सराउंडिंग। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हॉट कॉफ़ी हमने इस कप में ली हुई है तो कुछ देर के बाद ये कोल्ड होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी चेंज हो रही, लेकिन क्लोज रहने की वजह से कंटेनर जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। यहाँ पर ज़रूरी है कि कंटेनर जो है वो क्लोज रहना चाहिए। सो एग्जाम्पल इज you take hot water in a closed container or you take hot tea in the closed container, etc. The last type of system is isolated system. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। A system which does not exchange either एनर्जी और मैटर विथ सराउंडिंग, यानी इस सिस्टम में एनर्जी भी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते हैं सराउंडिंग से। सो अ सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर विथ द सराउंडिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है, here the container
शुड बी आइसोलेटेड। तो यहाँ पर जो कंटेनर होता है इट इज आइसोलेटेड, यानी यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं थर्मोस फ्लास्क। अगर हम हॉट टी या कॉफ़ी थर्मोस फ्लास्क में रखते हैं तो यहाँ पर इसकी एनर्जी भी और मैटर दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होते। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कंटेनर होता है वो आइसोलेटेड या इंसुलेटेड रहना ज़रूरी है, यानी जिसका एग्जांपल है थर्मोस फ्लास्क। तो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई गर्म चीज़ थर्मोस फ्लास्क में रखते हैं तो उसमें एनर्जी भी चेंज नहीं होती और मैटर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये होता है क्लोज। थर्मोस फ्लास्क यहाँ पर लेना है हमें क्लोज, इसलिए यहाँ पर मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता और ये इंसुलेटेड रहने की वजह से यहाँ पर एनर्जी भी चेंज नहीं होती। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर हमने 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स के सिस्टम के 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स देखे हुए। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। द फर्स्ट टाइप इज ओपन सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये कंटेनर ओपन रहना ज़रूरी है। यहाँ पर एनर्जी और मैटर दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होते हैं। सो अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ द सराउंडिंग। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंटेनर शुड बी ओपन। यहाँ पर कंटेनर ओपन ही रहना ज़रूरी है। एग्जाम्पल हमने देखा हॉट कॉफ़ी इन द कप और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, प्लैनेट्स, ऑल आर द ओपन सिस्टम। द सेकेंड टाइप इज क्लोज सिस्टम। यहाँ पर कंटेनर जो है क्लोज रहना मस्ट है एंड ड्यू टू क्लोज कंटेनर अ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी। कंटेनर क्लोज रहने की वजह से यहाँ पर सिर्फ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज होती है एंड नॉट द मैटर। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। और यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं हम हॉट टी और कॉफ़ी इन द क्लोज कंटेनर। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग। यहाँ पर एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होता और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर होता है सबसे पहले तो क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पर मैटर एक्सचेंज नहीं होता। और दूसरा द कंटेनर शुड बी इंसुलेटेड, मीन्स थर्मोस फ्लास्क लेते हैं यहाँ पर। इसकी वजह से एनर्जी यहाँ पर सराउंडिंग से मिक्स या चेंज नहीं होती। सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अभी हमने पढ़ा द टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें हम 3 टाइप्स पढ़े हुए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। Number 1 is extensive properties. The first type is extensive properties. तो सब में पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल। सो अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन the property which depends upon the amount of matter present in the system. The property which depends upon the amount of matter present in system. मतलब ये ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो डिपेंड्स होते हैं अमाउंट ऑफ मैटर पर। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये डिपेंड्स होते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, यानी अमाउंट ऑफ मैटर अगर
इंक्रीज होता है तो ये प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होते हैं, या अमाउंट ऑफ मैटर डिक्रीज होता है तो ये प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, मास means if amount of matter increases, the mass is also increases. If amount of matter decreases, the mass is also decreases. So mass is the extensive property. Then volume, if amount of matter increases, the volume is also increases, or if amount of matter is decreases, the volume is also decreases. So mass, volume, then internal energy, then heat capacity, these are, or the number of moles, these are the examples of extensive property. So the property which depends upon the amount of matter present in the system. Example, mass, volume, internal energy, heat capacity, and number of moles. The second property is intensive property. The second one is intensive properties. अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसके अपोजिट डेफिनेशन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की. सो अ प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन, यहाँ पर हमने लिखा है अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ प्रॉपर्टी विच does not depends upon the amount of matter present in the system. यानी ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं it does not depend, ये डिपेंड नहीं होते हैं the amount of matter present in the system. The amount of matter present in the system. So such type of properties is called इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो डेफिनेशन देखो यहाँ पर ध्यान से, अ प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. द एग्जाम्पल्स आर, द फर्स्ट इज टेम्परेचर. तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर किसी भी चीज़ का कांस्टेंट होता है, वो चाहे स्मॉल क्वांटिटी में हो या लार्ज क्वांटिटी में. सो द टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. देन प्रेशर, it is also does not depend upon the amount of matter present in the system. Then viscosity, it is also intensive property. Then melting point, boiling point, it is always constant, it does not depends upon the amount of matter present in the system. Then freezing point, then specific heat and surface tension, these are the etc. These are the example which does not depends upon the amount of matter present in the system. So such type of properties are called intensive properties.